Now we are going to discuss problems related to single slit diffraction. As we have discussed in single slit diffraction, this screen here, first minima lambda f by a on this side, and central width is 2 lambda f by a. This angular position is theta is lambda by a. Actually, for this first minima position, a sin theta is lambda, and for small angle we can write like this. For second minima, it is, this value is 2 lambda. This position is 2 lambda f by a. Here, first secondary maxima, central maxima. First secondary maxima, for the first secondary maxima, light going from this end, should have path difference of 3 lambda by 2. This is the basic for the single slit diffraction. Now we are going to use it in our problems. Here, slit width is given 2 lambda. As you know, we find very good diffraction when slit width is of the order of lambda. जितना लैम्डा के पास हम होंगे उतना ही ज्यादा डिफ्रैक्शन इफेक्ट या स्प्रेडिंग हमें मिलेगी. यहां हमने स्लिट काफी कम चौड़ाई की ली है, 2 लैम्डा, बहुत कम चौड़ाई की है, बहुत अच्छी स्प्रेडिंग मिलना चाहिए. लेट अस चेक इट. Distance of the screen is x I am taking. Angular position पूछा गया है और linear position पूछा गया है for the first minima. The angular position for the first minima we can get using the relation a sin theta. For first minima, this a sin theta must be lambda. Path difference must be lambda from two ends. So, sin theta is lambda by a. How much a they have given us? Slit width they have given us 2 lambda. Means it is 1 by 2. That means theta is 30 degree. That means first minima will be at angle 30 degree. That means if it is my slit, screen here, the slit is very, very small of the size 2 lambda, and I am getting this first minima at 30 degree. This is not a small angle. बहुत ज़्यादा spreading हुआ है. It is a good diffraction. If I want this distance, if I take it y, it is f, so I can say tan theta is y by f, or if they are saying it is at x, I can take this value x, so y by x. Y is x tan 30, theta is 30 degree, giving me x by root 3. So at this distance from midpoint, first minima here, on the other side also, first minima here, and it is how I will get a very good diffraction. स्मॉल एंगल होता जब तो tan थीटा को मैं sin थीटा के इक्वल लिख सकता था, पर यहां मैंने ऐसा नहीं किया. हम इसको यहां
एक बार फिर दिखा दिया मैंने आपको, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा क्यों लिया? फर्स्ट मिनिमा का मामला था। फिर ये 30 डिग्री आ गया, स्क्रीन के ऊपर टेन थीटा को हमने लिख दिया। स्मॉल एंगल होता तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते थे। एक बार अब देखिए, इसमें जो है दूसरा प्रॉब्लम अब हम लेते हैं। अब हमने ए को 100 लैम्डा ले लिया, स्लिट थोड़ी बड़ी कर दी, डेफिनेटली अब हमें उतना डिफ्रेक्शन नहीं मिलेगा। अब थोड़ा जो उसका स्प्रेडिंग होगी वो कम होगी। देखते हैं 30 डिग्री पे क्या मिलता है। तो 30 डिग्री के ऊपर हम देखें क्या पाथ डिफरेंस है, क्या रिलेशन है पाथ डिफरेंस का। ए साइन थीटा पाथ डिफरेंस देख लेते हैं, लैम्डा का कितना मल्टीपल है देख लेते हैं। ए साइन थीटा इज एन लैम्डा। अगर ये n 1 2 3 4 5 हुआ, इंटीजर हुआ, तो हमें ए साइन थीटा, तो हम कह देंगे कि वहां हमें मिनिमा मिलेगा। 3/2 5/2 7/2 हुआ तो हमें मैक्सिमा मिल जाएगा। इस वैल्यू का n मिला तो देखते हैं 30 डिग्री के लिए क्या मिलता है। तो यहां से a 100 लैम्डा साइन 30 इक्वल टू एन लैम्डा। साइन 30 हमारे पास में होता है 1/2, तो यहां से n का वैल्यू मुझे मिल रहा है 50। दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू मिला, इसका मतलब इस बार 30 डिग्री पर हमें 50th ऑर्डर का मिनिमा मिल रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन थिंक ऑफ द केस। दैट मीन्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन we were having first minima at 30 degree, first minima. Now this time we are getting 50th number minima. That means spreading is less. It is like this. In first case at 30 degree angle it was like this, but this time central is bright and I am getting this kind of pattern, less spreading, less diffraction, because we have taken lambda more, the slit width more. That means if we decrease the slit width, more will be spreading. If we increase the slit width, less will be the diffraction, less will be the spreading. So it is how we can understand what is the effect of slit width. And to get best result for the diffraction, we should try to come close to slit width, close to लैम्डा। जितना हम उसके पास पहुंचेंगे उतना अच्छा हमें डिफ्रेक्शन इफेक्ट मिलेगा। यहां पर उसी बात को हमने देखिए लिखा है ए साइन 30 डिग्री पे हमने पूछा तो एन का वैल्यू 50 आ गया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 50th मिनिमा मिलेगा। मोर विड्थ लेस स्प्रेडिंग हुई। सेंट्रल विड्थ पूछा है, अगर बड़े आराम से निकल जाएगी। 2 लैम्डा f/a की जगह x/a, तो x के ये इतना मीटर है सेंट्रल। और मैं अगर स्क्रीन की डिस्टेंस को 1 मीटर लेता हूं तो स्क्रीन की डिस्टेंस को 1 मीटर लिखते हैं। सेंट्रल विड्थ मुझे मिलेगी 2 सेंटीमीटर। सेंट्रल विड्थ मिली 2 सेंटीमीटर। जरा हम इस समय स्लिट विड्थ भी तो देखें। 100 लैम्डा का वैल्यू, चलो लैम्डा हमने 5000 एंगस्ट्रॉम अगर लिया, लैम्डा को अगर मैंने 5000 एंगस्ट्रॉम लिया, तो व्हाट आई एम हैविंग स्लिट विड्थ 0.05 mm. Slit width is 0.05 mm, but central width is 2 centimeter. 0.05 mm का स्लिट विड्थ है, 0.05 mm, और सेंट्रल स्प्रेड आया है 2 सेंटीमीटर। दिस इज स्प्रेडिंग। बहुत छोटी स्लिट ली लेकिन सेंट्रल में स्प्रेड ज्यादा आया। इसका मतलब हमारी जो लाइट थी, ये जो सेंटर अपना स्लिट है ये तो छोटी है और सेंट्रल स्प्रेड हमारा बड़ा है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 0.05 mm है। और ये जो इस तरह से स्प्रेडिंग हुई है, हमने यही तो कहा है कि लाइट सीधी अगर चलती तो केवल इतनी सी दूरी में लाइट होनी चाहिए थी, लेकिन स्प्रेडिंग जो हुआ है, दिस फिनोमेना एक्चुअली इज अवर डिफ्रैक्शन।
तो हम यही कहते हैं डिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना इन विच वी फाइंड आवर वेव will deviate from its rectilinear propagation if appropriate size, if aperture of appropriate size comes in the path of the light, we find it deviates and enters in the geometrical shadow region. That is our diffraction. And it will be dominating. It will be very good defect if this slit width is of the order of wavelength of the wave. This we want to say. Now, same type of problem. Central width is given. This time central width is given. Central width कितना होता है? 2 lambda f by a. Central width is given. 2 lambda f by a is given. How much? 5 mm. What is slit width if screen is at a distance 50 centimeter? Screen distance here is 50 centimeter. 50 centimeter. You want slit width. Light is of wavelength 500 nanometer. Lambda is of 500 nanometer. That means I can write to 500 nanometer. 5 into 10 power minus 7. Distance of the screen 50 सेंटीमीटर माइनस 2. केवल एक ही क्वांटिटी है a इक्वल टू विड्थ सेंट्रल विड्थ. हाउ मच? सेंट्रल विड्थ इज 5 millimeter. 2 lambda f by a. Now if I solve it, I will get the value of distance of the screen. This we have done here. This value a is 2 into this value here, just transfer here and you will get your size of the slit. And again you can say slit size is 0.1 mm, 0.1 mm and central spread is 5 mm. Slit size is 0.1 mm and central width is 5 mm. That means again at the screen, what you are getting? Spreading of light. Again we can see a good diffraction in this problem also. इस तरह से हम बात कर सकते हैं. Again same type of problem, but this time they have given us central spread and they have given us slit width. Lambda they have given. This time they are asking screen distance. एक्चुअल में सिंगल रिलेशन का यूज है यार. आप देखिए सेंट्रल विड्थ का रिलेशन होता है 2 lambda f by a. ये सेंट्रल विड्थ है. अब ये डाटा इनमें से 2 और दे देंगे तो ये निकल जाएगा. ये नहीं दिया तो ये दे देंगे. ये क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी इसमें है, 3 वो आपको प्रोवाइड करेंगे और 1 आपसे पूछेंगे. एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है. इस बार उन्होंने क्या क्या दे दिया हमें? सेंट्रल स्प्रेड दे दिया है उन्होंने 1 सेंटीमीटर का, और क्या दे दिया? वेवलेंथ भी दे दिया है, और क्या दिया है? स्लिट विड्थ दे दी है. ये स्लिट विड्थ दे दी है. पूछा क्या है? स्क्रीन डिस्टेंस. ये पूछा है, ये पूछा है. मुश्किल तो है ही नहीं सवाल. एक ही तो सिंगल फार्मूले से पूरी बातें हैंडल हो रही हैं. तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं. और अब आप देखिए ये सॉल्यूशन यहां पर हम बात करें तो वो वैल्यू डाल दिया है. सेंट्रल विड्थ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले ली है. लैम्डा हमने जो है वैल्यू लिख करके हम एफ फाइंड कर सकते हैं. तो ये एफ वगैरह निकालना है तो ये हमारे पास में केवल यहां इसको डिवीजन कर दें 2 लैम्डा का, और यहां पर आप देखिए ये वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई. 1 सेंटीमीटर सेंट्रल विड्थ की वैल्यू, और यहां से स्लिट विड्थ है अपने पास a 0.1 mm. ये 0.1 mm अपन ने ले लिया, वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, और अगेन वी आर कंफर्टेबल
with the answer. Slit width 0.1 millimeter, center width 1 centimeter. Again spreading. Point is very simple. Slit width बहुत कम है, spreading ज्यादा है, यही तो deviation from rectilinear propagation है. जितना स्लिट विड्थ कम रखेंगे, जितना हम लैम्डा के अप्रोच करेंगे, उतना ही स्प्रेडिंग ज्यादा होगा. स्लिट विड्थ को बड़ा करेंगे, स्प्रेडिंग कम होगा. ये थीम हमारे दिमाग में रहना चाहिए. यहां पर आप देखिए, एट ए गिवन पोजीशन इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, जब हमने लैम्डा लिया है 4000, एक गिवन पोजीशन पर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिला है. ठीक है, उसी जगह हम फर्स्ट मिनिमा चाहते हैं, तो वेवलेंथ क्या लें? उसी जगह हम फर्स्ट मिनिमा चाहते हैं, तो वेवलेंथ क्या लें? ये हमारी प्रॉब्लम है. इस वेवलेंथ के लिए किसी जगह पर हमें क्या मिला? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम. हम जानते हैं ए साइन थीटा किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए पार्ट डिफरेंस फर्स्ट मैक्सिमा के लिए कितना चाहिए? 3 λ/2. याद रखना, λ/2 से शुरुआत नहीं है, फर्स्ट मैक्सिमा है 3 λ/2 से शुरू. ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है. तो यहां से आ गया 3 λ/2. इस एंगुलर पोजीशन पर हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा. जब इस एंड से और इस एंड से जो लाइट जा रही है, उनमें जो पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा, वो जब 3 λ/2 होगा, तो हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा. ठीक है, अब मैं लैम्डा बदल दूं और चाहता हूं, लैम्डा बदल करके चाहता हूं उसी प्लेस पर, यानी उसी एंगल पर मुझे क्या मिल जाए? पहला मिनिमा मिल जाए. यार, पहला मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस की? लैम्डा. इसका मतलब मैं उसी एंगल के ऊपर, स्लिट भी वही है, एंगल भी वही है, पर इस बार अगर मैं वहां पहला मिनिमा चाहता हूं, तो मुझे लैम्डा डैश के बराबर इस वैल्यू को लेना पड़ेगा. यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ जाए, 3 λ/2. 3 λ/2. तो ये वैल्यू इसके बराबर करना है. तो 3/2 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश. अगर ये रहा, तो जिस जगह पर 4000 के लिए हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा था, लैम्डा डैश वेवलेंथ के लिए हमें फर्स्ट मिनिमा मिल जाएगा. अब लैम्डा का वैल्यू डाल देते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉम, और यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा डैश, और वो आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम. और इस तरह से हम हमारी बात कर सकते हैं. ये कैलकुलेशन आप देखिए, यहां पे तो हमने इसको एंगल टर्म्स में बात की, यहां हमने एक तरह से और डिस्टेंस टर्म्स में बात कर ली. फर्स्ट मैक्सिमा के लिए होता है, फर्स्ट मिनिमा के लिए होता है लैम्डा f/a. डिस्टेंस पर फर्स्ट मिनिमा मिलता है, फर्स्ट मैक्सिमा कितनी दूरी पर मिलता था? 3/2 लैम्डा f/a. फर्स्ट मैक्सिमा यहां मिला. नई वेवलेंथ के लिए यहीं पर उसी y वैल्यू पर क्या चाहिए? फर्स्ट मिनिमा चाहिए. मिनिमा की पोजीशन की डिस्टेंस क्या होती है? लैम्डा f/a. वही y आ गया, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा. वी विल नीड द वेवलेंथ 6000 इफ वी वांट फर्स्ट मिनिमा एट दैट सेम प्लेस वेयर वी वर हैविंग फर्स्ट मैक्सिमा corresponding to wavelength 4000 angstrom. This is how we can think of the case. Now, let us think of the effect of slit width. Here, what will happen to intensity of central maxima if we make the slit width half? देखिए, जो slit width होती है, उसी से यहां के नंबर ऑफ सोर्सेज डिसाइड होते हैं, n डिसाइड होता है, और सेंट्रल मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड होता है Na, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर a स्क्वायर के. इन्होंने कहा है कि हम जो है सेंट्रल, जो अपनी जो स्लिट विड्थ है, उसको हाफ कर दें, तो हमारा n नंबर भी तो हाफ हो जाएगा. माई n डैश विल बी n/2. अब ये n को अगर मैं हाफ कर दूं, स्क्वायर क्योंकि यहां आ रहा है, तो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो 1/4 हो जाएगी.
और इस तरह से हम स्लिट विड्थ का इफेक्ट देख सकते हैं फॉर द इंटेंसिटी कैलकुलेशन एट द सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी अगर आती है तो फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी हम बात कर ही चुके हैं, सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमने समझाई है। फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है 4I0 अपॉन 9π², तो बाकी मैक्सिमा की इंटेंसिटी को भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर अपर्चर। एक्चुअली this topic is very useful because when we use optical instrument like telescope, microscope, our eye, they all are having lenses, and light comes and passes through the lens. Lens has certain aperture. Though the wavelength of light is very small as compared to size of the lens. Wavelength of the light very, very small. Diffraction effect is very, very small. But when we are looking at the objects very small in size or two objects very close to each other, then this small diffraction, even this small diffraction creates problem in seeing them distinct or resolved. बहुत पास की चीजें हम महसूस करते हैं, दो पिलर हैं और वो बहुत पास में है आपस में और हमसे दूर हैं, तो हमारी वो आई पे जो एंगल बनाते हैं, उनका जो एंगुलर सेपरेशन होता है वो बहुत कम होता है। और हम कहते भी हैं कि इफ सेपरेशन इज लेस देन 1 मिनट, देन हम उनको रिजॉल्व नहीं देख पाते। टेलीस्कोप में हम देख लेते हैं तो कहते हैं टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी होती है। तो ये क्या मामला है, क्यों उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो जाती है, क्यों हम ऑर्डिनरी वे में बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं देख पाते? तो इन सब के पीछे जो इफेक्ट काम करता है वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट काम करता है, और वो कैसे हमारी चीजों को, हमारे सिस्टम की रिजॉल्विंग पावर को अफेक्ट करता है, वो बात अगर हमें समझनी है तो हमें पहले सर्कुलर अपर्चर से कैसे डिफ्रैक्शन होता है, क्या पैटर्न बनता है, वो हम पहले समझते हैं। फिर उसका हम यूज करके आई की रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इन पॉइंट्स को समझना चाहेंगे। जहां तक सर्कुलर अपर्चर है, स्लिट में स्लिट विड्थ की हम बात करते हैं। जब सर्कुलर अपर्चर लेते हैं, देयर वी टॉक अबाउट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो हियर इफ आई से here is my circular aperture. Screen here. Light having wavefront, plane wavefront is incident. Say the diameter of this aperture is A. Diameter is A. I am taking plane wavefront and screen distance large enough, let it be f, and as this distance is very large wavefront, there will be a plane wavefront, and I will say my diffraction is Fraunhofer diffraction. मैंने बात भी की थी आपसे, Fraunhofer diffraction में दोनों तरफ हमारे वेवफ्रंट जो है वो प्लेन था। अब ये जो लाइट है, बात तो ये है कि ये जो लाइट है वो केवल यहां पर इस रीजन में, सर्कुलर रीजन में ही पहुंचना चाहिए अगर स्ट्रेट चलती है तो, लेकिन डिफ्रैक्शन इफेक्ट है और एज ए रिजल्ट स्प्रेडिंग होगा, जैसा हमने एक्सप्लेन किया था। स्लिट के केस में तो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनी थी। स्लिट का शेप तो रेक्टेंगुलर रहता है। दिस टाइम वी आर टेकिंग द अपर्चर सर्कुलर। तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा कि यहां पर हमें, स्क्रीन पर हमें सेंट्रल मैक्स ब्राइट आएगा, यहां फर्स्ट डार्क, और ऐसे एक डिस्क बनेगी जिसमें इंटेंसिटी डेफिनेटली यूनिफॉर्म नहीं आएगी, पर एक सेंट्रल डिस्क बनेगी, ब्राइट डिस्क बनेगी, स्प्रेडिंग
सर्कुलर डिस्क बनेगी जिसकी रेडियस r इक्वल टू होती है, पहला मिनिमा स्लिट के केस में कितना डिस्टेंस पर था याद करो, लैम्डा एफ बाई ए पर कितना डिस्टेंस पर था, पर इसमें थोड़ा सा एक चेंज है उस शेप की वजह से, यहां एक मल्टीप्लायर आएगा 1.22। ये जब हम मैथमेटिक्स करते हैं सर्कुलर अपर्चर की, तब स्फेरिकल बेसल फंक्शंस का यूज करते हैं और उसको यूज करके जब सॉल्व करते हैं तो इस आंसर आता है, बट उसकी मैथमेटिक्स इस लेवल पे बात नहीं की जा सकती। केवल एक आपको इंफॉर्मेशन है जो दिमाग में रखनी है कि स्लिट अगर आपने ली है तब तो ये 1.22 का फैक्टर हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं सर्कुलर शेप है देन वी शुड टेक दिस फैक्टर 1.22 लैम्डा एफ बाई ए। ये इसकी रेडियस है और ए यहां पर इस सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर है। कीप इन माइंड दोनों चीजें रेडियस नहीं है। और ये जो एंगुलर पोजीशन है, जब स्लिट थी और स्मॉल एंगल का मामला था तो हमने लिखा था थीटा था वहां पर लैम्डा बाई ए, पर अब ये सर्कुलर इफेक्ट की वजह से ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 1.22 लैम्डा बाई ए। और ये जो हमारी डिस्क है, जो सर्कुलर ब्राइट डिस्क बनी है, इसमें यूनिफॉर्म इंटेंसिटी नहीं है, वेरिंग है, सेंटर पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है यहां पर, और ये जैसे जैसे जाते हैं दूर, यहां जाके मिनिमा हुई तो हम यहां तक इसको डिस्क को मानते हैं। इस डिस्क की जो नाम है वो है एरी डिस्क। इट इज अवर एरी डिस्क एंड नियरली 85-86% एनर्जी इज विद दिस डिस्क। It will be surrounded by bright dark rings, but as you know, higher order maximas are having very low intensity. तो उनमें तो बहुत वो रिंग्स बनेंगी तो सही, पर इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, और जो मेन रोल होता है वो इस एरी डिस्क का ही होता है। और जब हम सर्कुलर अपर्चर लेते हैं तो पैटर्न हमारा कॉन्सेंट्रिक ब्राइट डार्क रिंग्स बनती है, सेंटर उसका ब्राइट बनता है, एरी डिस्क फॉर्म में बनता है, रेडियस हमने लिखी है, एंड इट विल बी सराउंडेड बाय ब्राइट एंड डार्क फेंट रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो इस तरह से हम ये बात कर रहे हैं। ये देखिए सर्कुलर डिस्क है, यहां पे सेंटर पे ये अपना सर्कुलर अपर्चर है। क्या ये ए क्या है उसका डायमीटर, यहां पर सर्कुलर डिस्क बनी है, ब्राइट डिस्क बनी है, क्या नाम है उसका एरी डिस्क। ये इसकी एरी डिस्क की ये क्या चीज है, रेडियस है, ये रेडियस है, और ये एंगुलर पोजीशन है, ये सेंट्रल डिस्क, और ये ब्राइट डार्क रिंग जो है सर्कुलर रिंग्स हमने ली है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हमने ली है। और इस तरह से हम एक डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर अपर्चर की बात कर सकते हैं। अब एक्चुअल में बात यह है कि हमारा जो लेंस है, चाहे वो आंख का लेंस हो, चाहे वो टेलीस्कोप का लेंस हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप का लेंस हो, लेंस अपना काम करेगा, वो फोकस करता है लाइट को, लेकिन वो लेंस अपने आप में एक सर्कुलर अपर्चर भी तो है, डिफ्रैक्शन भी तो देगा। तो हम इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास लेंस है और ये लाइट आ रही है। अब रे ऑप्टिक्स में तो हम पढ़ लेते हैं कि दिस लाइट हियर विल गेट फोकस्ड at this point, at distance f, parallel light, and we will get a point here. We'll get a point here. In ray optics, what we say? Light travels perfectly in a straight line, rectilinear propagation, and parallel light, after passing through this lens, will get focused in the focal plane, and we will get a point. Whole of the energy will focus there. But it is not the reality. Our light, when it will pass through the lens itself will behave like circular aperture. और अपर्चर में से लाइट जाएगी तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट तो आएगा, स्प्रेडिंग तो होगी, एरी डिस्क तो बनेगी। हालांकि हमारा जो लाइट का वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है,
एज कंपेयर टू साइज ऑफ द लेंस। तो ये बात सही है कि वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट काफी कम होंगे, स्प्रेडिंग काफी कम होगी, डिस्क की साइज छोटी बनेगी, पर डिस्क तो बनेगी तो सही ना। ये कहना तो गलत हो जाएगा ना कि बिल्कुल पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट की तो हम डायमेंशन मानते नहीं, ये पॉइंट नहीं बनकर एक डिस्क बनी। इसका मतलब ये जो लेंस हमारी लाइट को फोकस करेगा तो यहां हमें एक डिस्क बनेगी और इस तरह से उसमें इंटेंसिटी वेरिएशन हमें मिलेगा। तो ये जो एरी डिस्क बनी, ये एक्चुअल में यही एरी डिस्क जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ देखते हैं तो ये एरी डिस्क हम उन दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक्चुअल में हम इसको इस तरह से देखें कि जैसे ये एक लेंस ने तो यहां एक एरी डिस्क बना दी। अब मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक O है, दूसरा O डैश है। अब यहां से लाइट आ रही है और इसने यहां पर अपनी एरी डिस्क बना दी, इसने अपनी एरी डिस्क बना दी। यहां से ये लाइट गई, इसने अपनी एरी डिस्क बना दी। बना तो पॉइंट चाहिए था पर वो डिस्क बनी डिफ्रैक्शन की वजह से। आप कहेंगे सर बहुत छोटी बनी, हाँ छोटी बनती है। अब ये एंगल जब बड़ा होता है, ये एंगल जब बड़ा होता है तो वो दो डिस्क जो बनती हैं वो काफी दूर दूर रहती है। दो अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज बन जाएंगी, सेपरेट इमेज बन जाएंगी। उनको आसानी से हम देख भी सकते हैं। ये हमारा रेटिना भी हो सकता है, आंख का रेटिना भी हो सकता है। तो दो इमेज बिल्कुल अलग अलग रिजॉल्व इमेज बन गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात सोचो, अगर इस एंगल को मैं कम करता हूं, इस एंगल को कम करता हूं, तो क्या ये डिस्क एक दूसरे के पास नहीं आएंगे? और जब ये दोनों डिस्क एक दूसरे के पास आएंगे तो ओवरलैपिंग भी स्टार्ट होगी। और जैसे ओवरलैप होने लगेगी तो फिर इनको हमें रिजॉल्व देखने में दिक्कत आने लगेगी। लेकिन थोड़ी बहुत अगर ओवरलैपिंग हुई तब भी ये दो हमें दिखेंगे। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो डिस्क बिल्कुल सेपरेट हैं, इसकी इंटेंसिटी वेरिएशन और इसका इंटेंसिटी वेरिएशन यहां मैंने अलग अलग बनाया है। दोनों सेपरेट डिस्क जब तक हैं, जब तक ये दोनों सेपरेट हैं, जब तक तो दिक्कत नहीं है। बट एज यू डिक्रीज दिस एंगल, दे स्टार्ट ओवरलैपिंग। और ऐसे केस में थोड़ा बहुत अगर ओवरलैपिंग हुआ है, ये एक का डिस्क, ये दूसरे का डिस्क, तो ये पहले का इंटेंसिटी वेरिएशन, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के एरी डिस्क का इंटेंसिटी वेरिएशन, और ये रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट में भी कुछ इस तरह का शेप आ रहा है कि वी विल से नहीं, ये एक नहीं है, दो है, तो अभी भी हम उनको रिजॉल्व या डिस्टिंक्ट कह देंगे। लेकिन सपोज करिए जब एक की जो एरी डिस्क है, ये एक पे और ये दूसरे की एरी डिस्क इस तरह से हो गई है कि जहां पर एक एरी डिस्क का सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है, वहां दूसरी एरी डिस्क का फर्स्ट मिनिमा आ रहा है। और ऐसे ही जहां दूसरी का सेंट्रल मैक्सिमा है, वहां पहली का फर्स्ट मिनिमा है। जब ये इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी, और अब अगर हम इंटेंसिटी वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, देन इंटेंसिटी वेरिएशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेरिएशन विल बी लाइक दिस। और ऐसे में फिर हमारे को ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये तब होगा जब इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाए। तो इसको बात को सबसे पहले साइंटिस्ट रेले ने कहा, और इसीलिए इस कंडीशन को कहते हैं रेलेस कंडीशन फॉर डिस्टिंक्ट विजन। वो कहते हैं उसके अंदर कि जो दो डिस्क बने वो दूर दूर बने तो रिजॉल्व रहेंगी, और तब तक ये रिजॉल्व दिख सकती है जब तक ये एक दूसरे में बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं कर जाएं। और उनका जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन तब मानते हैं व्हेन मिनिमा ऑफ द वन डिस्क लाइज ऑन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अदर डिस्क। वहां तक हम इनको जस्ट रिजॉल्व मानते हैं। एंड इफ द ओवरलैपिंग further increases, then we will not able to see them resolved. This thing is known as Rayleigh's criteria for distinct vision. So here we can think of the Rayleigh. 2 points are just resolve. इसके बाद में resolve होना वो बंद हो जाएंगे, यहां तक वो resolve दिख जाएंगे. In an optical system, when the central maxima of diffraction pattern due to one fall on the first minima of diffraction pattern of the other, ये just resolve का केस आ गया। इस समय इंटेंसिटी वेरिएशन या बिल्कुल ऐसा मिल जाएगा इस तरह का।
इससे कम ये एंगल कर दिया, इससे कम अगर ये एंगल कर दिया तो फिर ये चीजें हमारी रिजॉल्व नहीं दिखेंगी, ये दिक्कत हो जाएगी। और ये जहां ये मिनिमा आता है, सेंट्रल मैक्सिमा या मिनिमा आता है, हम सब जानते हैं ये एंगल होता है 1.22 लैम्डा बाई ए, वेयर ए इज डायमीटर ऑफ दिस। तो अब ये एंगल इसी एंगल के बराबर है। तो जो ये दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं ओ एंड ओ डैश, इफ देयर एंगुलर सेपरेशन इज दिस मच अप टू दिस मच, तब तक तो वो हमें अलग दिखेंगे। एंड इफ दिस एंगुलर सेपरेशन इज लेस देन दिस वैल्यू, देन ओवरलैपिंग विल बी so much that we will not able to see them resolved, we will not able to see them distinct. तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस एंगुलर सेपरेशन में को इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, वरना लेंस फिर उनकी दो रिजॉल्व इमेज नहीं बनाएगा। और इसीलिए इस एंगल को कह देते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द लेंस। अब आंख का लेंस है तो यहां आंख के लेंस का डायमीटर हो जाता है ये, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब है इससे कम एंगुलर सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ये लिमिट है। और ये जितनी छोटे एंगल तक हम चीजों को देख पाएंगे, यानी हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितनी छोटी होगी उतनी ही पास पास की चीजों को हम रिजॉल्व देख पाएंगे, यानी हमारा रिजॉल्व देखने की जो पावर है, एबिलिटी है, वो ज्यादा होगी। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो इस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का इनवर्स होती है। तो हम इस तरह से ये बात कह सकते हैं। और जहां तक आंख की बात कर रहे हो तो ये ए हमारा आंख के लेंस का अपर्चर हो जाएगा। हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हो तो यही ए हमारा टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर हो जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर हो जाएगा। तो अगर हम इस वैल्यू को, ए की वैल्यू को ज्यादा कर देंगे जैसा टेलीस्कोप में हम करते हैं, तो हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो जाती है और हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है वो बढ़ जाती है और एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जो बहुत कम एंगुलर सेपरेशन के ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं, दो ऑब्जेक्ट अगर कम एंगुलर सेपरेशन पे भी होंगे तो उनको हमें वो रिजॉल्व दिखाने में हेल्प कर देता है। लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करना है कि उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम से कम हो, और वो तब हो पाएगी जब उसका अपर्चर ज्यादा से ज्यादा करें। आई में तो फिक्स है, आई की जो अपना पीपल की जो साइज है उससे हम कैलकुलेशन अभी करके देख लेंगे, पर अगर और भी इंप्रूव करना होता है, कई बार हमें जैसे मून है उनको में कोई गड्ढे हैं उनको अलग अलग देखना है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वी वांट टू सी देम रिजॉल्व, तो फिर हम टेलीस्कोप वगैरह यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमें उनको रिजॉल्व दिखा देता है। तो रिजॉल्व कैसे दिखा देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमें एंगुलर सेपरेशन बड़ा करके देता है। वो एंगुलर सेपरेशन या कहिए कि उनकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो कम हमें रखनी पड़ती है, रिजॉल्विंग पावर उनकी ज्यादा रखनी पड़ती है। और ऐसा हम कर सकते हैं बाय टेकिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर द टेलीस्कोप लार्ज। तो बड़े बड़े हम लेंसेस यूज करते हैं अच्छे टेलीस्कोप में टू इंप्रूव द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में एक नई टर्म हम यूज करेंगे, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, न्यूमेरिकल अपर्चर। उसका भी पर्पज यही होता है कि रिजॉल्विंग पावर हम बढ़ा लें। पर एक बेसिक बात यहां हमारे समझ में आ जाती है कि आखिर दिक्कत कहां आई। अगर ये डिस्क नहीं बनती, केवल पॉइंट इमेज बनती, और पॉइंट इमेज बनने का मतलब डिफ्रेक्शन इफेक्ट नहीं होता, वरना डिफ्रेक्शन में तो ये तो डिस्क तो बनेगी। तो अगर हमारी लाइट का वेव बिहेवियर नहीं होता, लाइट हमारी परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, एनर्जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, वेव बिहेवियर नहीं दिखाती, डिफ्रेक्शन इफेक्ट नहीं दिखाती, तो फिर तो क्या दिक्कत थी, फिर तो ना डिस्क बनती ना ओवरलैपिंग की कोई केस होता। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस डिस्क की जो साइज है वो छोटी से छोटी बने, तो लैम्डा कम से कम लें और अपर्चर ज्यादा से ज्यादा लें। जो माइक्रोस्कोप वगैरह में हम कहते हैं ऑयल इमर्ज माइक्रोस्कोप काम में लो भाई, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होती है, लिमिट कम होती है, उसकी डिस्क छोटी बनती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑयल की प्रेजेंस में लैम्डा कम हो जाता है। मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम लैम्डा बिकम्स लैम्डा बाई म्यू। तो ये म्यू कम करके, म्यू या मीडियम बीच में डाल करके, लैम्डा की वैल्यू कम करके हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम करके और रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा लेते हैं। तो हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, या तो हम लेंस की साइज बढ़ा लें या लैम्डा को कम से कम कर लें। ये दोनों ही अप्रोच हमें हमारी डिफ्रेक्शन इफेक्ट को कमजोर करेगी
और डिफ्रैक्शन इफेक्ट कमजोर होगा तो डिफ्रैक्ट ये हमारी डिस्क छोटी बनेगी, और डिस्क छोटी बनेगी तो ओवरलैपिंग का चांसेस कम होगा, और ऐसे में बहुत पास पास के ऑब्जेक्ट्स को भी हम रिजॉल्व देख पाएंगे, और हमारी उनको देखने की जो अलग अलग देखने की जो एबिलिटी है वो इंप्रूव हो पाएगी। तो इस तरह से हम हमारे सिस्टम में काम करते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें अभी आई के बारे में और टेलीस्कोप के बारे में और माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में बात करनी है, लेकिन बेसिक बात जो चलती है वो कहीं ना कहीं हमारा जो लेंस है वो एक सर्कुलर अपर्चर की तरह काम कर रहा है, और हमारी कोशिश ये रहना चाहिए डिफ्रैक्शन इफेक्ट कम से कम हो, डिस्क छोटी से छोटी बने। देखिए डिस्क छोटी बनेगी तो ओवरलैप के चांस कम होंगे, ओवरलैप के चांस कम होंगे तो बहुत पास पास की चीजों को हम रिजॉल्व देख पाएंगे। तो दोनों बातें देखो अलग तरह से सोचो। अगर हमें किसी चीज को वेव प्रूव करना होता है तो हम चाहते हैं डिफ्रैक्शन हो, तब हम चाहते हैं अपर्चर की साइज लैम्डा के ऑर्डर में हो, क्योंकि वहां हमें वेव प्रूव करना है, वहां हम डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं तो वहां हमारा टारगेट बदल जाता है। वी वांट कि डिफ्रैक्शन ना हो वरना डिस्क बनेगी, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आएगी और हम चीजों को रिजॉल्व देखने की प्रॉब्लम रहेगी। तो यहां हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट में डिफ्रैक्शन इफेक्ट को इग्नोर करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, एंड दैट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग वेवलेंथ as small as possible and lenses size as large as possible. That will give me a good optical instrument.